मुझे ऐसा लगता है कि जब एक अंदर से आवाज आती है, एक खुद से भी समझ में आता है कि हाँ मुझ में वो कॉन्फिडेंस है, मैं लोगों को एक्सप्लेन अच्छा कर पाता हूँ। बिकॉज एज अ टीचर आई थिंक एक्सप्रेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हो सकता है आपको आता बहुत कुछ हो, बट अगर आप ठीक से समझा नहीं पाएंगे, इफ यू आर नॉट एबल टू नरेट इट प्रॉपर्ली टू द स्टूडेंट्स, देन उसका कोई भी फायदा नहीं है। Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. Today, I have a very special guest with me. She is Miss Mausami Ghosh, and she has qualified her UGC NET in JRF in Commerce in the subject of Commerce with 99 percentile, 99 plus percentile. So today we are going to discuss with her strategy कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी, what has been her success mantra, and I'm very sure that you're going to get a lot of inspiration. So first of all, heartiest congratulations, Mausami, and thank you so much for joining us on our channel. Thank you so much, sir. Mausami, सबसे पहले बताइए that how does it feel to crack JRF and score such wonderful percentile? Sir, it feels really great. That moment you get to see the marks and the word written like qualified for JRF, it's just heartwarming. It's like everything pays off. All your hard work just pays off. So what was your first reaction? Sir, actually, I was in in a friend's marriage actually, and Okay. and it was my birthday also. And wow. As soon as I get to see the result, I just screamed, and all my friends also screamed with me like, "Yes, you got it!" And they are really very happy, and so am I. Like fantastic. बिल्कुल सही कहा आपने कि एक बार जब रिजल्ट आ जाता है अच्छा, तो ऐसा लगता है कि जो भी सेक्रीफाइसेस थे, जो भी कॉम्प्रोमाइजेस हमने किए थे, all of that has paid off. So Mausami, can you specifically tell us your exact percentile? So my percentile was 99.56. Fantastic. I think 99.56 is a wonderful percentile considering कि इस बार का जो level of exam था, that was very difficult. So heartiest congratulations once again, Mausami. Thank you so much. Mausami, now that brings me to the first question. I want you to tell us about your educational background. क्या क्या आपने किया है, आपका कैसा score रहा है, and what you're doing currently, and how did you stumble upon towards NET JRF? So I have done all my plus 2, like from 1 to 12 in Kendra Vidyalaya, and after that I went to Goenka College of Commerce and Business Administration for my undergraduate, and after that I did my post graduation from University of Kalyani. There I was topper, like I have scored I was being first throughout the semesters. And after that, in last year I got qualified for University Research Scholar, but for some reason I have not accepted it, and I just go through with my JRF preparation. And in 2020 also I have qualified UGC NET in Commerce, and this time JRF. Fantastic. I think Mausami बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है आपकी. I'm sure बहुत सारा हार्ड वर्क लगा होगा. मौसमी, मुझे बताइए कि टॉपर्स के साथ एक मेजर एलिमेंट क्या होता है कि दे हैव द ऑप्शन टू गो एनीवेयर, लिटरली एनीवेयर. जो टॉपर्स होते हैं उनके कंसेप्ट्स इतने अच्छे होते हैं, एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी अ वंडरफुल हार्ड वर्कर एज वेल. तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते थे. सो व्हाट मेड यू कम टुवर्ड्स टीचिंग फील्ड फर्स्ट, एंड व्हेन डिड यू एक्चुअली स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन? सर एक्चुअली जब मैं अपने ग्रेजुएशन में भी थी या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी थी, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो बोलते थे कि तू बहुत अच्छा समझाती है. लाइक दे डिडंट अंडरस्टैंड ऑफ व्हाट सर इज सेइंग, बट दे अंडरस्टैंड लाइक व्हाट यू आर सेइंग. इन माय स्कूल लाइफ आल्सो पीपल यूज्ड टू से लाइक यू आर रियली गुड विद द कॉन्सेप्ट्स, तुम्हारा समझाना बहुत अच्छा है. तो उससे मुझे लगा कि शायद मुझे टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए. एंड माय टीचर्स आल्सो पुश मी कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, तुम समझाती अच्छा हो, इसलिए सर. दैट्स रियली नाइस. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब एक अंदर से आवाज आती है, एक खुद से भी समझ में आता है कि हाँ मुझ में वो कॉन्फिडेंस है, मैं लोगों को एक्सप्लेन अच्छा कर पाता हूँ. बिकॉज एज अ टीचर आई थिंक एक्सप्रेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज हो सकता है आपको आता बहुत कुछ हो, बट अगर आप ठीक से समझा नहीं पाएंगे, इफ यू आर नॉट एबल टू नरेट इट प्रॉपर्ली टू द स्टूडेंट्स, देन उसका कोई भी फायदा नहीं है. सो आई थिंक आपने बहुत अच्छा चॉइस किया मौसमी, एंड आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू बिकम अ वंडरफुल टीचर इन फ्यूचर.
मौसमी, क्या आप हमें स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि आपने कितने महीने अपनी तैयारी करी एंड what were the sources of material that you have referred for paper 1 as well as paper 2 commerce? Sir, I have started my preparation from February 2021, and I don't used to like, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन मैं जितना टाइम भी पढ़ती थी मैं फोकस से पढ़, मेरे को लगता है कि फोकस ज्यादा जरूरी है being rather than just mugging up things. Yes, I have seen you very continuous on our channel in all our live sessions. मतलब मुझे बहुत क्लियरली याद है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं बट कुछ स्टूडेंट्स का नाम याद रह जाता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है कि आपका सेशन मिस नहीं होता था, यू आर ऑलवेज देयर इन द सेशंस. सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी सर, जब व्हेन आई गेट टू नो योर चैनल इन 2020, जब 1 मंथ का हमारा एक्सटेंशन हुआ था एग्जाम का, तब आई गेट टू नो योर चैनल एंड आई हैव सीन लाइक 162 वीडियोस ऑफ योर चैनल इन 1 मंथ एंड आई जस्ट लव ऑल दोस थिंग्स एंड आई जस्ट लाइक कि नेक्स्ट बार इसी से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और जेआरएफ देना. That is amazing. That is so sweet of you, मौसमी, telling that, because ये आइडिया तो हमारा यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स वीडियो देखें. और इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है वो इसीलिए बना रखी है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 4-5 ईयर्स के एक्सपीरियंस में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा जो हमने नहीं पढ़ाया हो. तो अगर स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं तो दे कैन गो टू द प्लेलिस्ट, दे कैन लुक फॉर द वीडियोज एंड वो वहां से पढ़ाई कर सकते हैं. एंड आई एम श्योर कि आपने कंसेप्ट्स को अच्छे से समझा, बिकॉज मैं तो सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, बट आई एम श्योर आपने बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स को समझा, पढ़ाई करी, एंड देयरफॉर यू हैव क्रैक्ड योर यूजीसी नेट जेआरएफ इन कॉमर्स. मौसमी, अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि हर स्टूडेंट कोई ना कोई चैलेंज जरूर फेस करता है. किसी को पेपर 1 में प्रॉब्लम होती है, किसी को पेपर 2 में प्रॉब्लम होती है. तो आप मुझे स्पेसिफिकली बताइए कि कौन सा एरिया था जहां आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और आपने उसको टैकल कैसे किया. सो बेसिकली मैथ्स मेरा कभी भी उतना अच्छा नहीं रहा है. मैथ्स से मुझे खुद भी बहुत ज्यादा डर लगता है, बट आई थिंक सर कि बाकी सब चीजों को और अच्छे से बेटर से करना चाहिए. जैसे कि there are scoring subject like teaching, research, there is mathematical reasoning, few things if you practice on a daily basis you can score good. तो मुझे लगता है कि वो सब चीजों में ज्यादा फोकस करो, और अगर मैथ्स वगैरह में डर लगता है तो उसको कंटिन्यूअसली डेली बेसिस में थोड़ा करके करते जाओगे तो हो जाना चाहिए. आई थिंक बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे पहले तो वो चीजें कवर करिए जो आपको आती है अच्छे से, जो आपकी स्ट्रेंथ है बेसिकली, और जो थोड़ी सी आपकी वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करके अगर धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा टाइम ना लगा के बट रेगुलरली अगर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें तो आई थिंक वो भी इंप्रूव किया जा सकता है. आई थिंक आपने वही किया होगा मौसमी, एंड दैट इज व्हाई यू हैव क्वालिफाइड जेआरएफ इन कॉमर्स. फैंटास्टिक. मौसमी, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि एक टाइम मैनेजमेंट को लेके स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है हमारे पास कि सर टाइम कैसे मैनेज करें, सुबह पढ़ें कि रात को पढ़ें, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सारे कुछ सवाल होते हैं. तो मौसमी, आप बताइए कि व्हाट वाज योर डेली रूटीन, आपका डेली रूटीन क्या था, कितना टाइम आप डिवोट करते थे, अगर पेपर 1 के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइमलाइन थी तो वो क्या थी, और पेपर 2 के लिए क्या टाइमलाइन थी. सर मैं बेसिकली सुबह के टाइम को पेपर 1 में ज्यादा फोकस करती थी, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस इज सिमिलर टू आवर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड वी नो थिंग, तो उसमें उतना ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं है. बट जब पेपर 1 के लिए हमें हमेशा एक क्लियर माइंड होने की जरूरत है, लाइक फ्रेश माइंड होने की जरूरत है, तो पेपर 1 को मैं हमेशा सुबह लेके बैठती थी. लाइक 2-3 hours आई यूज्ड टू डिवोट टू पेपर 1 एंड आफ्टर दैट इन इवनिंग लाइक आपके क्लासेस भी होते थे, उसके बाद जो टॉपिक आप पढ़ाते थे मैं उसी को फिर से रिवाइज करती थी. अगर कुछ न्यू टॉपिक आ गया या फिर कोई न्यू थ्योरी आपने दिखाया तो मैं उसको नोट्स में ऐड ऑन करती थी, फिर मैं दोबारा उसको रिवाइज करती थी. इट जस्ट हेल्प मी. फैंटास्टिक. मुझे ये चीज बोलनी पड़ेगी, मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ कि जो टॉपर्स की नोट्स बनाने वाली आदत है ना, ये उनको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाती है बिना लोगों के रियलाइज हुए. क्योंकि होता क्या है कि आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अब आप उसको जब खुद के वर्ड्स में लिखते हैं तो आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है वो कुछ और ही पहुंच जाता है. श्योर आपने जो नोट्स बनाए थे वो आपके लिए रिवीजन में भी बहुत काम आए होंगे और उन्होंने आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में भी हेल्प करी हो. यस सर. फैंटास्टिक. मौसमी, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि सिर्फ पास्ट ईयर लगा के चले जाओ और जेआरएफ क्रैक हो जाएगा, या फिर इतने क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन लगा के चले जाओ, मेरा तो जेआरएफ क्रैक हो गया था. पहला सवाल, आप इससे कितना अग्री करते हैं, क्या आप सहमत हैं या फिर नहीं.
सेकंड, मॉक टेस्ट क्या रोल प्ले करते हैं और आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए, इसके बारे में कुछ बताइए। सर मुझे लगता है पास्ट ईयर अगर बिफोर 2018 से पहले अगर हम लोग देखें तो पास्ट ईयर हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन आफ्टर 2021 एज सुन एज एनटीए कंडक्टिंग द एग्जाम, पैटर्न इतना चेंज हो गया है कि पास्ट ईयर जरूरत है, लेकिन पास्ट ईयर से आप टॉपिक को आइडेंटिफाई कीजिए, मतलब कि लाइक यू एनालिसिस इट, लाइक कौन से टॉपिक ज्यादा आ रहे हैं या फिर कौन से कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा पूछा जा रहा है। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट rather than just continuously revising and mugging up the answers. It's more important to know the concepts. और mock test is very important. Like अगर seriously 3-4 mock test अच्छे से दिया जाए, like 3 घंटे बैठ के अगर दिया जाए, तो I think it will help you in the exam. Like you get the focus. क्योंकि 3 घंटा बैठना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मैं साथ में, हाँ जी प्लीज बोलिए। अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो सर वो उस समय ज्यादा हेल्प करेगा कि हाँ 3 घंटे बैठ के फोकस करना है, मैथ्स उस टाइम में डीआई करना है, उस टाइम में मैथ्स करना है, उस टाइम में रीजनिंग करना है, उसको प्रैक्टिस हो जाती है। आई थिंक मैं बिल्कुल अग्री करूंगा। और मैं यहाँ पे बस एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। कई बार स्टूडेंट्स मानते नहीं है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपको क्या प्रॉब्लम, आप तो पढ़ा रहे हो सर, आप तो मेंटर हो। मैं आपको बताऊं, इस बार मैं भी एग्जाम देने गया था, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और 2 मेरा जेआरएफ इन कॉमर्स है इस बार। बट मैं बता सकता हूँ आपको कि 2 घंटे, क्योंकि हम मॉक टेस्ट तो प्रैक्टिस करते नहीं है जैसे स्टूडेंट्स बैठ के 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। 2 घंटे के बाद मेरा खुद का फोकस भी मुझे ऐसा लग रहा था कि इधर उधर हो रहा है। और वो इसलिए होता है क्योंकि मॉक टेस्ट इतने ज्यादा जरूरी है, दे मेक यू प्रैक्टिस, दे मेक यू हैबिचुअल कि आप 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज 3 घंटे कॉन्सेंट्रेट करके बैठना, बैक टू बैक क्वेश्चन सॉल्व करना, 150 क्वेश्चन एफिशिएंसी के साथ सॉल्व करना, इट्स नॉट एन इजी वे आउट। तो अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप 3 घंटे कॉन्सेंट्रेट करके तो नहीं सॉल्व कर सकते। तो आई थिंक बिल्कुल सही कहा आपने, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बहुत जरूरी है। मौसमी बहुत एकेडमिक बातें हो गई। अब मुझे ये बताइए कि अब आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गया इतने अच्छे परसेंटाइल से, अब आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है? आर यू प्लानिंग टू गेट इनटू टीचिंग? आर यू प्लानिंग टू गेट इनटू पीएचडी? क्या करने वाले हैं? सर अभी के लिए तो मैं पीएचडी में ही जाना चाहूंगी। आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम एज आई गेट टू नो मोर थिंग्स, आई विल गो फॉर टीचिंग। फैंटास्टिक। तो अभी आपने कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना शुरू कर दिया? यस सर, आई हैव स्टार्टेड माय प्रपोजल आल्सो एंड आई हैव स्टार्टेड फॉर, मतलब देने के लिए भी मैंने ये कर लिया। वंडरफुल, बिकॉज क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स को क्लैरिटी होती है। वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हमें नेट में जाना चाहिए, पीएचडी में जाना चाहिए। वो क्लैरिटी है तो चाहे आप टीचिंग चूज करें या फिर आप पीएचडी चूज करें, डजंट मैटर, यू आर गोइंग टू एक्सेल बिकॉज आपके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट है। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव दैट क्लैरिटी। मौसमी अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सिंस आपने जेआरएफ इतने अच्छे परसेंटाइल से क्रैक किया है, व्हाट इज गोइंग टू बी योर एडवाइस टू फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। सो माय एडवाइस टू देम विल बी लाइक प्रैक्टिस ऑन ए रेगुलर बेसिस, क्योंकि रेगुलर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट पे और डिस्कशन कीजिए। अगर आपके पास लाइक वी यूज्ड टू डिस्कस very much in the Telegram group, like few of us are very much active and we used to continuously discuss. Those sessions are very much helpful while you are giving the actual exam. Like you remember all those discussions, so it's very important to discuss with your peers. तो actual को पता चलता है कि हाँ हमें इन लोगों के साथ देना है जो जिन लोगों का इतना अच्छा क्लैरिटी है, तो वो रियल लाइफ सिचुएशन आपको क्रिएट करता है। और सर यही बोलना है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल याद आ रहा है कि टेलीग्राम ग्रुप में कुछ 4-5 बच्चे थे जो आपस में पहले डिस्कशन करते थे, और अगर उनका डिस्कशन किसी ऐसी जगह पहुंच जाता था जहां वो 2 लोग अग्री नहीं कर रहे होते थे, तो मुझे याद है कि मुझे टैग किया जाता था टेलीग्राम ग्रुप पे, देन आई यूज्ड टू पिच इन और मैं वो क्वेरी रिजॉल्व करता था। और मैं सच में इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज होता क्या है कि वी ऑल आर इन द लर्निंग स्टेज। हम सब लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, लाइफ लॉन्ग हमें सीखते रहना है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम किसी से डिस्कशन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ कुछ और पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं या जिस माइंडसेट से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है उस माइंडसेट से वो प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो, या फिर हो सकता है किसी और वे आउट से भी, किसी और मेथड से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
तो आई थिंक डिस्कशन से बहुत हेल्प मिलती है एंड आई एम वेरी श्योर कि जो भी सेशंस आपने अटेंड किए जिसमें आप बहुत रेगुलर थे और जो आपने डिस्कशंस किए दैट वर वेरी हेल्पफुल एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लाइफ में इसी तरीके से आगे और सक्सेस अचीव करते रहेंगे विद सच परसिवियरेंस विद सच पर्सनालिटी ऑफ योर्स. सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन मौसमी वंस अगेन. इफ यू एवर फील कि मैं कहीं भी आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ पीएचडी में, प्लीज एब्सोल्युटली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. हमने एक जो अलग चैनल बनाया है जो आपने देख लिया होगा वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था बिकॉज उसमें अपने कुछ रिसर्च रिलेटेड कोर्सेज, रिसर्च रिलेटेड वीडियोस भी बनाना शुरू कर रहा हूँ. तो आई एम वेरी श्योर कि उन स्टूडेंट्स को जो नेट जेआरएफ एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं, जिनको चैलेंजेस होते हैं कि प्रपोजल कैसे बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखें, इंटरव्यू की कैसे तैयारी करें, वो सारे इश्यूज भी वहां रिजॉल्व हो जाए. So thank you very much, Mosimi, for being with us and sharing your success. Thank you so much, Mosimi. Thank you, sir. Thank you.